key characteristic of hydrogen. So, and then we have to study about various compounds of hydrogen, ठीक है, including water, details about water, hydrogen peroxide. These are the two key compounds regarding which we have to do detailed study. So, primarily in this chapter, we have to know about hydrogen and its compound along with their usability. Uh, we also have to understand hardness of water, and hardness of water is actually something which is related to this chapter, which we have done quite earlier in our stoichiometric analysis, that belongs to this chapter. Oxidizing and reducing nature of H2O2, another thing. So, see, inorganic chemistry में chapters, whatever chapters we are going to do, apart from looking at the properties and their applications in form of compounds, ways through which that compound can be formed, usability of that compound. Another important thing is we also have to look at the structural parameters of each and every compound. Okay, how they actually look like in 3D structure is something which will be again of a great importance to us. Okay, so whatever compounds we are going to do or whatever elements we are going to do, our perspective will be that only. Like we will we will be studying each element from that perspective. How, in what natural form does it exist? Uh, I mean, the element as well as its compound. Okay, what is their natural form of existence at room temperatures? Okay, so let us begin with it. The very first thing is hydrogen was discovered by Cavendish, and it was named hydrogen by another scientist named Lavoisier. Yeah. Actually Lavoisier ने हाइड्रोजन को नेम किया था एज एन he was chemically able to prepare hydrogen for the first time. So he named it hydrogen. Uh, it is most abundant element in the universe. Most abundant element as in स्टार्स हमारे जितने भी हैं, जो भी स्टार्स हैं यूनिवर्स में, जो ग्लोइंग स्टार्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ओनली. वहाँ पर जो रिएक्शन चल रहा है, that is nuclear reaction, hydrogen is getting converted into helium. ठीक है, 2 3 4 स्टेप लंबा रिएक्शन होता है. 4 हाइड्रोजन मिलकर के 2 हीलियम बनाते हैं. 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाता है और 2 पॉजिट्रॉन बनाता है प्लस. ठीक है, इस तरह का रिएक्शन चलते रहता है.
तो बेसिकली हाइड्रोजन इसलिए अबंडेंट है क्योंकि ये सारे स्टार्स का अ, एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली सारे स्टार्स का अगर ये इंटीग्रल कंपोनेंट है in universe, this is the this is going to be the most abundant element in universe. uh, on earth surface we are going to talk about, it's the third most abundant after oxygen and silicon. Most abundant in universe, third most abundant on earth surface. One another thing associated with hydrogen is its position in periodic table is not fixed, ठीक है। uh, that is one of the failures of periodic table, modern periodic table. It has been unable to give a fixed position to hydrogen. Generally वन होता है और वन होने की वजह से एटॉमिक नंबर वन है, इसलिए इन जनरल हम लोग इसको प्लेस करते हैं फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के जस्ट ऊपर, ठीक है। बट इसका पोजीशन लिथियम के साथ साथ it can also be placed close to helium above fluorine, ठीक है। Why? Because इसके पास फ्लोरीन के ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज भी उसी टाइप की इसके अंदर भी होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जनरल पोजीशन हमारी यहाँ पर होती है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, strontium, barium, and then you have D block elements over here, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. First one is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper. एक रह गया जिंक, यहाँ पे एल्यूमिनियम, सॉरी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम,
हाइड्रोजन का दूसरा पोजीशन जो होता है which is there is this one just above fluorine. This is the pseudo position assigned to hydrogen. So hydrogen has properties close to the first group as well as to the last group. It has closeness in properties to elements present in this group as well as to this group. Okay. So what are those properties? Is what I'm going to explain. Similarity with first group elements and similarity with last, second last or halogen group elements. That leads to its ambiguity in position. So the things are, it has similar valence cell configuration of NS1, similar valence cell configuration, valence cell outermost cell, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का NS1 होता है। NS1 का मतलब आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। NS1 होने का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। It displays electropositive character. Displays electropositive character का मतलब ये स्टेबिलिटी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसके एक बैलेंस सेल में है उसको वो लूज कर देता है। ठीक है, लूज करने की टेंडेंसी रखता है। दैट मीन्स इट कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, cationic ion, and hence it is assumed that it has positive electropositive character. ठीक है, and they displays with electronegative elements. Those elements which are highly electronegative उनके साथ ही positive ion form करता है by losing its electron, and that is something which is common with group 1 group 2 elements. Group 1 group 2 elements. ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। एलिमेंट्स लाइक दिस टू फॉर्म electrovalency and oxidation state of, it has electrovalency and oxidation state of +1 with elements of higher electronegativity. इन सारे के साथ में जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स है उनके साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करने के टाइम पर जो वैलेंसी शो करता है एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो दैट इलेक्ट्रोवैलेंसी इज +1. इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द, है तो एक ही लूज करेगा। ठीक है, it has good reducing nature like alkali metals. ठीक है, it can easily form cations, it can easily form, not easily form cation but it can form cation, therefore it has reducing nature. Actually इसको cation form करने में easiness नहीं होती है, रहता है difficulty, ठीक है, but it can form, or as it can form it has reducing nature like alkali metals. अल्कली मेटल्स अपना कटायन, अपना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है या लूज कर देता है। वो बाकी सारे जो है वो इजीली लूज करते हैं, ये इजीली लूज नहीं करता है। इसको लूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है बट ये लूज कर पाता है एंड देयरफॉर इट हैज रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सामने वाला इसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देयरफॉर सामने वाला जो है वो रिड्यूस हो गया और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो इट एक्ट्स एज, इट हैज टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर लाइक अल्कली मेटल्स। सो दीज आर 3 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स। It has certain similarities with halogen atoms as well.
हैलोजन एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी से एक कम, ठीक है। जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनके पीरियड का, उससे एक कम इलेक्ट्रॉन उनके पास रहता है। फर्स्ट पीरियड का स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 है। 1s2 हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना is the stable configuration for helium, which is attained by helium. हाइड्रोजन का क्या है, एक कम है, हीलियम से एक कम है, राइट। NH2 is the stable configuration for first period and उससे कम है NS1 configuration है इसका. So it has similar valence cell configuration. It has same similar valence cell configuration as halogens, having one electron less than the stable configuration of 1s2, and therefore it displays a electrovalency or covalency of 1, ठीक है। मतलब लूज करना है स्टेबिलिटी के लिए, कटायनिक फॉर्म लेना है तब भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और गेन भी करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी बनाएगा, ठीक है। और another similarity with halogens is it can easily display non-metallic character. Non-metallic character का मतलब है अनायन फॉर्म करने का कैरेक्टर, या फिर existence in gaseous diatomic physical existence, non-conductor of electricity, ये कुछ मेजर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जैसा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शो करते हैं, उस टाइप के नेचर को ये डिस्प्ले करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, it shows electronegative nature as halogens forming negative ion with electropositive elements of group 1 and 2, ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है जैसे NaCl होता है ना, क्लोरीन निगेटिव आयन फॉर्म करता है, सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। We can say that chlorine is electronegative element और electronegative character इसके अंदर रहता है। It forms negative ion. सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, and then these two things combine together. So हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी तो है ही, पॉजिटिव आयन कटायन फॉर्म करता है when it is reacting with ये क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, इनके साथ जब वो रिएक्ट कर रहा होता है तो इट शोज electronegative character, that means it accept electrons from these metal ions, ठीक, metal atoms, ठीक है। और so it shows electronegative character or electronegative nature, displays non-metallic characters, similar valence cell configuration of one less than stable configuration, ठीक है। one less than stable configuration, nearest stable configuration, one electron less than uh, nearest noble gas configuration, ठीक है। Last one is another similarity with halogens is it has high ionization energy. In order to form cation, it requires good amount of energy. हाइड्रोजन के लिए
आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, फोर्थ मॉडल में भी पढ़ा था हमने, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अराउंड रहता है। फ्लोरीन के लिए द वैल्यू इज 17.4, क्लोरीन के लिए 13.0, ब्रोमीन के लिए 11.82, आयोडीन के लिए 10.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हैलोजेंस इज क्वाइट हाई। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑनलाइन और इन लाइन विद द ionization energy of halogens. It has high ionization energy. ठीक है, it shows similar covalency and electrovalency as halogen. Halogens की covalency या electrovalency एक ही होती है, एक इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है, सिमिलरली शेयर कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी जो है वो 1 की ही है। हैलोजेंस के पास एक और कैरेक्टर होता है कोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी के अलावा वो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होने की वजह से। हाइड्रोजन के पास वो नहीं होता है, दैट इज वेयर इट डिफर्स फ्रॉम देम। इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी जो है वो सेम रहेगा 1। ठीक है, हैलोजन से डिफरेंट इसकी जो कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये है कि इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली halogens have high electron gain enthalpy and hydrogen has very small or relatively much smaller comparatively low electron gain enthalpy. Hydrogen have comparatively low electron gain enthalpy. गेन एंथैल्पी जो है यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट रिलीजेस ओनली 75 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी, whereas fluorine, chlorine, bromine and iodine, they are generating or liberating large amount of energy, almost 4 times that of hydrogen when they are performing similar tasks. ठीक है, that means affinity of hydrogen, ठीक है, affinity of hydrogen for electrons is much lesser compared to that of halogens. Similarly, its ability to lose that electron also is smaller, is much higher compared to the group 1 elements. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 एलिमेंट से काफी डिफरेंट है, इनफैक्ट ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बराबर है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये इनसे डिफरेंट टेंडेंसी शो करता है, इनका काफी ज्यादा है, दैट मींस दे आर मोर फेवरेबल इन फॉर्मिंग अनायंस, जबकि हाइड्रोजन जो है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है दैट इज क्वाइट लेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म anion. Now, that is the basic idea about hydrogen, some of the key things. And then we will have to look at uh, methods of preparation of hydrogen. Hydrogen natural state is, या normal state is dihydrogen. ठीक है, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म इज H2, H2 molecular form. So इस चैप्टर में मतलब यहाँ पे डाई हाइड्रोजन इसलिए लिखा गया है क्योंकि आगे एक्टिवेटेड हाइड्रोजन के प्रिपरेशंस वगैरह भी हम लोग को देखने हैं। सो यहाँ पर इसलिए इसको स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। सी इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर। प्रिपरेशन ऑफ वाटर के अंदर में
key facts are: the first ways it can be reacted, or cooled water can be reacted with highly active this metals or highly active metals. Highly reactive metals can react even with cooled water, even with cooled water to produce हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्शंस दिया हुआ है, मतलब एक रिएक्शन दिया हुआ है, मेटल इज रिएक्टिंग विद H2O to form metal hydroxide and hydrogen gas. एंड दो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस दिए हुए हैं. ग्रुप 2 वाले जो है, ग्रुप 2 वाले इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ग्रुप 1 वाले जो है इस तरीके से, यानी लिथियम फैमिली जो है, लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium and cesium, they are going to react like this as sodium is reacting, whereas group 2 wale, calcium group, magnesium, beryllium या magnesium group is going to react like this. ठीक है, इसमें एक चीज और भी होता है, ऊपर के दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों, वो दोनों कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड लिथियम, लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, ये तीन जो है कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करेंगे. ठीक है, लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not react with cold water. Is it okay? So हाइड्रोजन जो है वो साथ में सोडियम जो है, इसके अलावा बाकी नहीं, जैसे पोटेशियम, सीजियम वगैरह नहीं करते हैं. सोडियम की रिएक्टिंग टेंडेंसी जो होती है विथ H2O, दैट इज इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और साथ में बहुत ज्यादा रैपिड भी होता है. रैपिड, विगरस, रैपिड या बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है. दैट मेक्स दिस रिएक्शन एक्सप्लोसिव वन. ठीक है, यानी सोडियम को अगर डायरेक्टली पानी के अंदर में डाला, सोडियम मेटल को पानी के अंदर में डाला, तो देयर इज लाइकलीहुड ऑफ एक्सप्लोजन. ठीक है, therefore instead of reacting the sodium directly, we react the sodium mercury alloy. ठीक है, this is known as amalgamated sodium. सोडियम और मरकरी, मेटल और मरकरी का अलॉय, किसी भी मेटल को मरकरी के साथ अगर हम अलॉय बोल करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वी कॉल इट अमलगम. क्या बोलते हैं? हैव यू गाइस हर्ड ऑफ दिस वर्ड अमलगम? Yes, sir. अमलगम, अमलगम क्या होता है? अलॉय, अलॉय of element with
is known as amalgam. ठीक है. So sodium and mercury reacts together. Reacts बोल रहा हूँ. It form alloys. This is called amalgamated sodium. So this is used instead of pure uh, sodium to take care of this reaction. ठीक है. और reacted in this reaction, uh, this reduces the rate of reaction. Amalgamated sodium में reaction rate जो होता है वो कम हो जाता है, and that's how this is avoided. The explosions can be avoided. ठीक है. The next thing is hot water can act on less reactive elements. Hot water can act on less reactive elements like zinc, magnesium, aluminium, in fact lithium and beryllium as well, uh, to form oxides and hydrogen gas. इसमें एक ये रहता है लिथियम बेरिलियम वाले में, या नॉट ओनली लिथियम बेरिलियम बट बाकी भी एलिमेंट्स के केस में. अच्छा, रिलेटिवली लेस रिएक्टिव जो है, मतलब एक तो है हाईली रिएक्टिव, ये नॉर्मल रिएक्टिव मेटल्स हैं. नॉर्मल रिएक्टिव मेटल वी कांट कॉल देम लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव कंपेयर्ड टू हाईली रिएक्टिव वंस. ठीक है. बट अदरवाइज दे आर आल्सो गुड रिएक्टिव. इनसे कम रिएक्टिव जो होते हैं जैसे आयरन वगैरह हो गया, तो वो आयरन हो गया, कॉपर तो रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन हो गया और भी एलिमेंट्स रहते हैं, मैंगनीज वगैरह हैं, तो इनका क्या है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद इवन हॉट वाटर, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है. थर्ड कैटेगरी इज एक्शन ऑफ स्टीम. एक्शन ऑफ स्टीम. ठीक है. सो और इसमें मेनली एग्जांपल जो होता है हमारा वो होता है आयरन का. आयरन को रेड हॉट करते हैं. आयरन भी है, निकल भी है, मैंगनीज भी है. आयरन रेड हॉट एंड इसके ऊपर से हम स्टीम पास करते हैं, H2O in form of steam, and we have Fa3O4 on hydrogen gas being formed. This method of formation of H2 is also termed as Lane's process. Lane's process. Used, I mean, it's industrial method of preparation. Industrial method of preparation of hydrogen. Method of preparation of hydrogen. अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर. सी, वैसे तो जो भी मेटल है, जो भी मेटल्स हैं, थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखते हैं तो दे कैन इजीली रिएक्ट विथ वाटर, either in normal circumstances, that is cold water, or hot water.
या फिर नहीं तो फाइनली स्टीम से तो उनको रिएक्ट करना ही चाहिए, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिकली ऐसा है कि water can react with almost all the metal atoms uh, to liberate hydrogen and either form oxides, hydroxides, oxides और hydroxides, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव वाले के साथ हाइड्रोक्साइड, कम रिएक्टिव वाले के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। रिएक्शन नहीं होने के पीछे प्राइमरली दो रीजंस होते हैं, वो दोनों रीजंस हमको पता होने चाहिए। किसी भी एमसीक्यू प्रॉब्लम के अंदर में जनरली दोनों रीजंस नहीं रहेंगे, एक रीजन दिया रहेगा और जो रीजन इसमें से दिया रहेगा वही आपका नॉन रिएक्टिविटी के लिए रीजन होगा। एवरी केस में the non-reactivity of metal atoms with H2O can be explained in two ways, ठीक है। थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी इसकी हमेशा रहती है, यानी ये रिएक्शन जो होता है कोई भी मेटल एटम हो M plus H2O giving MOH and H2 delta H negative, this is always going to be highly negative। इधर वाले भी जो होते हैं H2O hot plus M giving MO plus H2, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं, सॉरी हाईली एक्सोथर्मिक ही होते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक होते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक होता है, होते सारे एक्सोथर्मिक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। और यानी थर्मोडायनेमिकली इनके कंपाउंड्स के फॉर्मेशन या रिएक्शन को लेकर के देयर इज नो डाउट। सो अगर थर्मोडायनेमिकली कोई चीज पॉसिबल हो रही है, फिर भी रियलिटी ये है या नेचुरल फाइंडिंग ये है कि वो रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं एनवायरनमेंट में खुद ब खुद। इसके पीछे प्राइमरली दो रीजंस होते हैं, ठीक है। पहला रीजन जो होता है या पहला रीजन जो हो सकता है वो होता है there is something called kinetic control, ठीक है। kinetically the reaction, और ये सिर्फ इस रिएक्शन को लेकर के वाटर का मेटल के साथ रिएक्शन को लेकर के नहीं है, इट इज अ वेरी जेनरिक एक्सप्लेनेशन टू ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस जो थर्मोडायनेमिकली हमको पॉसिबल दिखते हैं बट रियलिटी में खुद से होते नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे रिएक्शन जो थर्मोडायनेमिकली हमको फेवरेबल दिखते हैं यानी उनके डेल्टा एच निगेटिव हैं बट वो रिएक्शन खुद से नहीं हो पाते, उसके पीछे द रीजंस आर kinetically the reaction is unfavorable। काइनेटिकली अनफेवरेबल होने का मतलब क्या है? काइनेटिक्स चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो विल कम टू सी दैट हर रिएक्शन के होने के लिए देयर इज सर्टेन थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड। जब तक उसके एटम्स के पास जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उन एटम्स के पास जब तक वो थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं आती है उनमें रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। uh, that factor that meeting up of or meeting up of this threshold energy, ठीक है, such that a reaction can take place is known as kinetic control of the reaction, ठीक है, and or kinetic viability of the reaction। Now if the kinetic viability, ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक वायबिलिटी और एक्टिवेशन काइनेटिक वायबिलिटी और एक्टिवेशन एनर्जी
अगर हमारा एक्सेप्शनली हाई हो गया, काइनेटिकली द रिएक्शन इज अनफेवरेबल, मतलब काइनेटिक वायबिलिटी और एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, ठीक है। अगर ये रीजन रहता है तो क्या होगा, द रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड इवन दो इट अपीयर्स दैट इट इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, ठीक है। वो खुद से नहीं होगा, आपको कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करके, एक्सटर्नल असिस्टेंस प्रोवाइड करके उस रिएक्शन को कराना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या हो सकता है, ऑब्वियसली उसको एक्टिवेशन एनर्जी दीजिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो फिर वो रिएक्शन करेगा। दूसरा रीजन जो होता है, देयर आर मेनी एलिमेंट्स जो मतलब काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड्स जो है ना, मेटल ऑक्साइड्स, they do not dissolve, metal oxide do not dissolve in water, do not dissolve water, ठीक है। There are many metal oxides which do not dissolve in water, ठीक है। Many metal oxides do not dissolve in water, that is they are inert, inert to water. Now anything which is inert to water, that is not going to get dissolved, तो होता क्या है, ये मेटल हमने लिया, चंक ऑफ मेटल, इसको एक्सपोज किया वाटर के साथ, रिएक्शन तो फर्स्ट हैंड होता है, बट ये सरफेस के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में, ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक है। और ये मेटल ऑक्साइड का लेयर जो है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करता है, इसलिए ये लेयर फर्दर वाटर में डिसॉल्व होकर के बाहर नहीं निकल पाता है, निकलता नहीं है। अब इस पैसिव मेटल ऑक्साइड की वजह से अंदर का जो पूरा मेटल है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, इट डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। सो पैसिविटी ऑफ ऑक्साइड्स, सॉरी, incapability of metallic oxides to get dissolved in water, ठीक है, that is another primary reason। और ये नहीं होगा तो further layers of ये metal atom जो है they cannot get exposed to water, और water से expose नहीं होंगे तो reaction नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ बाहर वाला लेयर जो है वो रिएक्ट करके एंड पैसिव मेटल ऑक्साइड बना लिया, और उसके अंदर बाकी का मेटल ऑक्साइड, मेटल जो होता है वो प्योरर फॉर्म में प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। सो कहीं पर भी कोई मेटल अगर, मतलब कहीं पर भी अगर कोई मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है वाटर के साथ, तो the reason can be explained in these two formats only. Kinetically the reaction might be unfavorable, or second it might be forming a passive metal oxide layer, passive metal oxide layer जो water के अंदर dissolve नहीं कर रहा है, and therefore the reaction is not taking place, ठीक है। And one such example is beryllium, ठीक है। बेरिलियम मेटल जो है, बेरिलियम, ठीक है, इट डज नॉट react with, it does not react even with steam,
formation of passive metal oxide layer on the surface. While reacting with reacting with uh, we understood this particular thing, action of preparation of hydrogen from water. The key method is reaction with metals. The metals can react in three different ways. कोल्ड वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव, थोड़े हॉट या वार्म वाटर के साथ रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, और और कम रिएक्टिव है तो फिर वी नीड टू सप्लाई स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड वहां पे होता है। वाटर के साथ अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है मेटल्स का, इसका मतलब रीजन दो हो सकते हैं, या तो काइनेटिकली फेवर्ड नहीं है यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, या फिर पैसिव मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्म में नॉन रिएक्टिविटी विद वाटर कैन बी एक्सप्लेन। इसके अलावा और तीसरा कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर के साथ और जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, फोर्थ मेथड उसके अंदर में आता है हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन। वाटर कैन रिएक्ट विद हाइड्राइड। फोर्थ वन इज रिएक्शन विद हाइड्राइड। रिएक्शन विद हाइड्राइड, metal hydrides rather say। Water when reacted, right? Water when reacted with metal hydride MH plus H2O gives MOH plus H2. That is the general reaction which takes place. So लगभग सारे metal hydrides जो हैं वो react करते हैं। metal hydrides जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सारे हाइड्राइड जो है वो रिएक्ट करते हैं। इसमें ये होता है कि कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है CaH2, इसका नाम हाइड्रोलिथ जो होता है हाइड्रोलिथ। This is considered, hydrolith is considered to be best source of hydrogen, is considered best source of hydrogen among hydrides, source of hydrogen नहीं, बस यहीं पे खत्म करूंगा मैं। और नहीं, इसके अलावा एक मेथड और डिस्कस कर लेता हूँ, छोटा सा है, एंड देन वी विल स्टॉप। Fifth method of preparation of hydrogen from water is fifth method of preparation is electrolysis of acidified or alkaline water। ठीक है,
एक्चुअली 100% प्योर वाटर जो होता है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करी नहीं जा सकती है, होता नहीं है। हाँ आई नो, 2 मिनट बस। प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर, वाटर नो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकती है बाय नो इलेक्ट्रोलाइसिस एज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। सो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इसको कंडक्टिंग बनाना सबसे पहले जरूरी होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का एसिड या हल्का अल्कलाइन डाल देते हैं। 99.95% प्योर वाटर, वाटर, ठीक है, बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये 0.5%, 0.05% क्या रहेगा, 0.05% is acid or base which has been added, acid or base। ठीक है, एसिडिटी या अल्कलिनिटी के लिए बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि अब ये कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग। ठीक है, और बाकी सब तो ठीक है। रिएक्शन आई राइट एंड सेंड दिस PDF to you guys।